السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کی مدد طول شکر اور صبر کی راہوں سے گزر کر ہی اللہ پاک کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھی اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھی۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ پاک آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا بولے، اچھا سوچے اور ہمیشہ اچھے کی امیدیں رکھے۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ جو مسرا دوسروں کا حق ماننا اپنا حق سمجھتا ہے، وہ مارا بے موت مر جاتا ہے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورت جتنی بڑھتی جائے گی، سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ یہ زندگی ہے صاحب، اگر الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، اور اگر بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجز سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ پاک کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ زندگی گزارنے کے یہ 6 اصول ہیں: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدتر سر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ جس انسان کا خود پر قابو نہ ہو وہ انسان خود کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس انسان کو دوسرے قابو کرتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ انسان کا درد ہی اسے مضبوط بناتا ہے، اس کا ڈر اسے بہادر بناتا ہے، اور اس کے دل کا ٹوٹنا اسے حساس اور سمجھدار بناتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی وجاہت کرتی ہیں: ایک صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دوسرا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے، جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہاری لاکھ دلیل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مجب سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا سر منفی سوچ ہے۔ یہ زندگی کی آخری دریافت ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وجاہت انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا: ایک مسکرانا اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں
बल्कि उसकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों, कामयाबियों और उसके मैसर नेमतों से करती हैं। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यह नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी न बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। खुलूस की कोई खास जुबान नहीं होती, यह दिल में महसूस होता है और आंखों में झलकता है। अगर जिंदगी कभी अंधेरे बांटे थे, इंसान को किसी की नीयत जानने का नहीं बल्कि अपनी नीयत साफ रखने का अजर मिलेगा। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है। यह बात अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहां ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता। जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है क्योंकि उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी तलाश करने को शक कहते हैं। एक कामयाब इंसान उन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उन्हें मारे होते हैं। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छिपाएं? फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में, गलती हो जाए तो तौबा में। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह पाक का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। अल्लाह पाक को जुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह पाक ने उन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है पर सौर याफ्ता कोई नहीं बनता। नमाज अदा न करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। बात यह नहीं कि पहाड़ कितना ऊंचा है, बात यह है कि आपके कदम कितने मजबूत हैं। फिजूल गुफ्तगू से दो किस्म के लोग ही, एक जिसमें इल्म की कसरत हो, दूसरा जिसमें जिक्र की कसरत हो। अल्लाह पाक का शुक्र है मेरा दीन इस्लाम है, वो दीन जो हर बुराई से रोकता है, हर अच्छाई की दावत देता है। इल्म इंसान को सदियों तक जिंदा रखता है, वरना जिस्मानी जिंदगी के दिन मुखर हैं। कब्रिस्तान की खामोश कब्रों से इबरत लो और उन्हें देखा करो, गुनाहों से बचने में आसानी होगी। अखलाक वो मोती हैं जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज खरीदी जा सकती है। जिनका भरोसा अल्लाह पाक हो उनकी मंजिल कामयाबी होती है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसानों से तवक्क कम से कम रखी और ऊपर जो जात है उसी पर तवक्क रखी। यकीन तो समंदर में भी रास्ता बना देता है, यकीन तो सुलगती हुई आग को भी ठंडा कर देता है। तो तुम अपने रब से इतने मायूस क्यों हो? यकीन मौजूदों का बहुत खास हिस्सा है और वो आखिर में तुम्हें तुम्हारा यकीन कैसे थाम लेगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब कभी किसी जरूरतमंद की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफी है सबके लिए। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो यह न समझना कि वो कितना बेवकूफ है, मगर बल्कि यह सोचना उसका तुम पर कितना एतबार था। हजरत अली फरमाते हैं, जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो, उसको कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। जब अल्लाह पाक किसी से नाराज होता है तो उसे ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। जब अल्लाह पाक किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है, बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। 4 चीजें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जुबान को और रास्ते में निकाह को। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में बेऐब इंसान तलाश करोगे
तो अकेले रह जाओगे। तुम्हारी नियत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज की लालच ना हो। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। जिंदगी की असल खूबसूरती यह नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो यह है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खामोशी एक अजीब नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हो, आवाज बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। अपने अंदर परिंदे की तरह आसी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुकाकर रखता है। इंसान के किरदार की 2 मंजिलें, दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान में मिठास है तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। ज्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तगफार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तगफार मुश्किलात का हल है। दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। जाहिल ना तो अपनी कमजोरी को समझता है और ना नसीहत करने वाले की बातों को कबूल करता है। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दिन वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया मकाफत अमल है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है और तजुर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जो आजमाइश के वक्त सब्र करते हैं वो अल्लाह पाक के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि सब्र में सिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह पाक को सुनाई देता है। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। हक के रास्ते में सबसे बड़ी शक्ति यह आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। रास्ते बनाना अल्लाह पाक का काम है। तुम बस दुआएं करते रहो और अल्लाह पाक पर यकीन रखो। अल्लाह पाक तुम्हारी सब दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की रबत का बेहतरीन रास्ता अजीज है। दर्द अल्लाह पाक से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं। बंदे को अल्लाह पाक पर भरोसा होना चाहिए। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल जाते हैं। बस इंसान को यह यकीन और भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह पाक हमेशा उसके साथ है। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा न करना। इंसान तो इतना अक्लमंद नहीं कि अल्लाह पाक के इरादे को समझ सके। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नियत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। किसी का बुरा चाहने से पहले यह भी सोच लें कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाती हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, मगर हकीकत तो यह है कि जख्म कभी नहीं भरते, बल्कि वक्त के साथ हमें सहना आ जाता है। इंसान सख्त मिजाज कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठा चुके होते हैं। ऐ इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के सर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयां फैला दें। इख्तिलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने की दलील है। तरबियत और पालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या सिर्फ आपको पाला गया है। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार कोई छुपा नहीं सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी होगी परेशानियां उतनी कम होंगी और आखिरत में हिसाब भी आसान होगा। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे में
इबादत के लिए फुर्सत की नहीं तौफीक की जरूरत होती है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। जिंदगी कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। आजी, इंसानी, दरगुजार, तौबा, अल्लाह पाक की कुर्बत के बेहतरीन रास्ते हैं। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह पाक जिसे पसंद करता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत जबरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। रुतबा औरत का कितना बड़ा रखा है रब ने, रहमत बन के आती है और जन्नत बन के जाती है। जब कभी तुम्हें अपने रिज्क में कमी नजर आने लगे तो कुछ माल अल्लाह पाक को देकर अल्लाह पाक के साथ तिजारत कर लिया करो। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसे नरम मिजाज बना देता है। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो कभी आईना कभी साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती है या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ न कुछ सिखा देती हैं। झूठ बहुत तेज दौड़ता है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बनाता है और कद्र आपको हीरो से मिलवा देता है। जिंदगी में 2 लोगों से दूर रहें, मसरूफ और मगरूर, क्योंकि मसरूफ लोग अपनी मर्जी से बात करेंगे और मगरूर लोग अपने मतलब से याद करेंगे। वक्त और दौलत 2 ऐसी चीजें हैं जो इनके इख्तियार में नहीं, इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से और कभी गलतफहमी से। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो यह समझ लेना कि वो अपनी अमानत तुम्हें देता है, जिसमें कभी भी खयानत मत करना। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए नकाब की जरूरत पड़ती। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात न रखे, न झगड़े तवील होने दे, माफ कर दे, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और बतरी धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। तुम्हारा श्लोक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जिंदगी ने मौत से पूछा, लोग क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुमसे इतनी नफरत? मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक खूबसूरत झूठ हो और मैं तल हकीकत। जिंदगी सोच समझ कर गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। सब्र ईमान की बुनियाद है, अखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की जुबान है, आजी कामयाबी की कुंजी है, दुआ मोमिन का हथियार है, 3 लोग कभी ना भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा, जिसने मुश्किल में डाला। जब अल्लाह पाक को आपकी जिंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। दुनिया की दौलत अल्लाह पाक उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह पाक सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। जिसको अल्लाह पाक ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता, जिसको अल्लाह पाक ने इस्तगफार की तौफीक दी वो मगफिरत से महरूम नहीं रह सकता, जिसको अल्लाह पाक ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से मिलता है मोहब्बत। अल्लाह पाक से हो तो बंदगी बन जाती है, मोहब्बत उस्ताद से हो तो रोशनी बन जाती है, मोहब्बत दौलत से हो तो मर्ज बन जाती है, मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है, मोहब्बत वालिदैन से हो तो इबादत बन जाती है, मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो दुनिया और आखिरत बन जाती है। सब्र, शुक्र, जिक्र और फिक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखती हैं। सब्र
टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है, जिक्र दर्जा को बुलंद करता है, फिक्र गुनाहों से रोकता है, खामोशी एक इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और रब के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पाक से वाबस्ता कर ली। सिर्फ अल्लाह पाक का डर ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को हर बुराई से रोक सकता है। इंसान के किरदार की दो मंजिलें, या दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होती हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाती हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाती हैं। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। किसी से बदला लेने का मजा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ कर देने का मजा सारी जिंदगी रहेगा। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, दूसरों का ऐब छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। झूठ बोलना आसान है, छुपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलवाना आसान है, बनना मुश्किल है। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मुहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते जाते हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। अगर जिंदगी में कभी ऐसी जिंदगी से गुजरो जिनका कभी गुमान भी नहीं किया हो तो इत्मीनान रखना अल्लाह पाक राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी ना गुजरा हो। बेशक वो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है, हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लो, क्योंकि अल्लाह पाक शुक्रगुजार से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक ही है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। कुदरत ने किसको किससे कब मिलवाना है इस बात का फैसला वो खुद करती है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अल्लाह पाक जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज्यादा नाजुक और कमजोर है। घबराओ नहीं, ठोकर भी उनको लगती है जिनको रब ने थामना होता है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक ले आएगा अपने मुकर्रर वक्त पर और तुम हैरान रह जाओगे। लोगों का छोड़ा हुआ हाथ अल्लाह पाक थाम लेता है। दिल को मायूस मत होने दे, बस यकीन रखें अल्लाह पाक के फैसलों पर। अगर देर है तो यकीनन उसी में खैर होगी। सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक यह मुश्किल काम है मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह पाक की नाराजगी से डरते हैं। जो अल्लाह पाक से डरता है अल्लाह पाक उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देता है। कभी ना उम्मीद ना होना, मेरा रब है ना वो कुन कहेगा तो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और दुआ के बाद अगला मुकाम सब्र का होगा, वो टूटने नहीं देगा। सब्र का सिलसिला वो कुन फरमाएगा और मुआजिजा हो जाएगा। अल्लाह पाक की मदद साथ हो तो आग की क्या मजाल कि आपका कुछ बिगाड़ सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों से यह भी सीखा है, जब अल्लाह पाक की रहमत जोश मारती है तो वो आपके लिए अच्छाई के दरवाजे के हाथों से खुलवाता है। सूर यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत ताम पाएंगे। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह पाक के देने में नहीं। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह पाक मोजिजों की इंतहा कर देगा। बुरे वक्त में बंदे का सबसे बड़ा मददगार अल्लाह पाक होता है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी तो नहीं। सब्र रखो, यकीन रखो, सब अच्छा होगा। मुश्किलात जब आती है तो इंसान को बजहर रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से उम्मीद और रास्ते खोल देता है। परेशान हो तो सर मत पकड़ो, सर को अल्लाह पाक के सामने झुका दो। वो रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर क्यों घबराते हो। नसीब से अल्लाह पाक जहाँ से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। जब मशवरा अल्लाह पाक से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। सजदे लंबे कीजिए, मुश्किलें छोटी हो जाएंगी। इंशाअल्लाह सुनो, सब्र करो, अल्लाह पाक आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह पाक ने टूटे हुए दिलों में, और जब उन दिलों का ईमान भी उतना ही ताकतवर होता है कि उनके दिल रेजा रेजा होकर भी कभी बिखर कर भी अल्लाह पाक से मांगते हैं। जालिम के
जुल्म से नहीं बल्कि सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। रब के देने या न देने पर कभी शक न करो, बेशक कभी वो शुक्र करवाता है तो कभी सब्र। जिस इंसान की जुबान पर हमेशा शुक्र रहता है, अल्लाह पाक उस इंसान को कभी मायूस नहीं करता। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान मांगती है, कभी जर्फ का, कभी नफ्स का और कभी सब्र का। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा न करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई न करो, खुशी का तो खूब करने वाली खुशी नहीं पा सकता। यह अता है मालिक की जो उसकी याद और मुकर्रर की हुई तकदीर पर राजी रहने से मिलती है। कुछ दरवाजे अल्लाह पाक हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। फायदा अल्लाह पाक की तरफ से है और नुकसान इंसान की अपनी ही बदआमाली की वजह से होता है। मोहब्बत इंसान को रब तक ले जाती है, मिल जाए तब भी ना मिले तब भी जहालत गहरी नींद की तरह होती है। जगाने वालों पर गुस्सा आता है, रिज्क और मौत का खौफ न रखो, यह अल्लाह पाक का इख्तियार है। न कोई रिज्क छीन सकता है न मौत दे सकता है सिवाय अल्लाह पाक के। बेशक इंसान को अल्लाह पाक तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से भलाई चाहता है तो उसको अपने नफ्स के ऐब दिखा देता है। किसी का सुकून छीन लेने का कफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जिसे रब जवाब देता है तो लाजवाब कर देता है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती न करना, ये वो वक्त होता है जो चेहरे याद रखता है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर बार किसी चीज के खत्म होने पर अल्लाह पाक से शिकवा करने के बजाय उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ एक चीज वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। जिनसे ताल्लुक रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक ना रखना हो उनसे बहस का कोई फायदा नहीं होता। जिंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं वही अल्लाह पाक की मदद भी मौजूद होती है। अपने रब से मांगा करो, क्योंकि वो ना औकात दिखाता है ना जात। अल्लाह पाक का डर रखने वाले कभी किसी पर जुल्म नहीं करते, कभी ताना नहीं देते, कभी हुकूक गजब नहीं करते। खुद को देखे कि हम किस कैटेगरी में है। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। यह वो अल्फाज हैं जिसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। जालिम को अल्लाह पाक मोहलत जरूर देता है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं उसकी पकड़ बहुत शदीद है। शिद्दत दर्द में होठों पर दुआ का होना साबित इससे भी तो होता है रब का होना। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए आपकी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। शैतान ने 4 सिफ्तों का जिक्र किया है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर 2 रास्ते उसने खुले छोड़ दिए, ऊपर और नीचे का रास्ता। ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे है सजदे का रास्ता। वो इन 2 रास्तों पर नहीं बैठ सकता। वो अल्लाह पाक ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। अल्लाह पाक के फैसले हमारी ख्वाहिशों और आरजुओं से बेहतर हैं, और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह पाक के पास होता है। रज़्क़ करता है फलक ऐसी जमीन पर जिस पर 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। इंसान ने कहा मैं थक चुका हूँ, जवाब आया अल्लाह पाक की रहमत से मायूस न होना। क्यों मैं उम्मीद का दामन छोड़ूं, मौजज़े मुश्किलों में होते हैं। कुछ चीजें, कुछ बातें और कुछ राज सिर्फ अल्लाह पाक और आपके दरमियान ही अच्छे लगते हैं। तमाम मुश्किलों का हल सजदा खुदा में है। 3 निशानियां जिनको करने से कयामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। यह मेरे रब का वादा है, जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहासा आंसू आ जाए तो उस अल्लाह पाक से चुपके बात कर लिया करें। वो सब जानता है लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है। अल्लाह पाक नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह पाक से, जो मैं अपना हर गम अल्लाह पाक को बताती हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह पाक के पास है। और जब अल्लाह पाक की मदद तुम्हारे लिए आएगी तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसी खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। उस सोच के साथ जिंदगी गुजारे, आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। एहसास भी बड़ा सुकून देता है कि कोई जाने या ना जाने अल्लाह पाक तो जानता है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।